बैरी मीत समान, बैरी मीत समान, बैरी मीत समान, बैरी मीत समान, बैरी मीत समान। कहो नानक सुन रे मना, कहो नानक सुन रे मना, मुकत आए तन जान, मुकत आए तजान, बैरी मीत समान, ओ बैरी मीत समान। पांच तत्व को तन रचियो, 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 जानो चतुर सुजान, जानो चतुर सुजान, जैते उपजो नानका, जैते उपजो नानका, लीनता है महिमा, लीनता है महिमा। कट कट में हर जू बसै, कट कट में हर जू बसै, संतन के ओ पुकार, संतन कहे ओ पुकार, को नानक है भज मना, को नानक है भज मना, को निद उतरे पार, को निद उतरे पार, बैरी मीत समान, बैरी मीत समान। सुख दुख जय परसै, सुख दुख जय परसै नहीं, लोभ मोह अभिमान, लोभ मोह अभिमान, कहो नानक सुन रे मना, कहो नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान, सो मूरत भगवान। उस्तत निंदया नाए जय, कंचन लो समान, कंचन लो समान, उस्तत निंदया नाए, उस्तत निंदया नाए, कंचन लो समान, कंचन लो समान।
सोग जाके हरख सोग जाके नहीं बैरी मीत समान बैरी मीत समान कहो नानक सुन रे मना कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताए मुक्त ताए जान तै काहूँ को देत तै काहूँ को देत न पैमानत न पैमानत को नानक सुन रे मना को नानक सुन रे मना ज्ञानी ताए बखान ज्ञानी ताए बखान बैरी मीत समान बैरी मीत समान हर सोग जाके हर सोग जाके बैरी मीत समान बैरी मीत समान ओ सो मूरत भगवान सो मूरत भगवान मुकत ताए मुकत ताहे ताहे ज्ञानी ताहे बखान ओ ज्ञानी ताहे बखान बैरी मीत समान बैरी मीत समान बैरी मीत बैरी मीत समान। 12 श्लोक गायन कर चुके सां और 10 श्लोक असी तुच्छ बुद्धि अनुसार ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜੀ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਲੋ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉਤਨਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਤੋਤਾ ਰਟਨੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਪਾਂਧੀ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋਤਾ ਰਟਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੋਤਾ ਰਟਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੋਤਾ ਰਟਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਕਾ ਕਬੂਤਰ, ਏ ਫॉर ਐਪਲ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16 दूना 32 ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਤਾ ਰਟਨੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾਣਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ, ਨਾ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ, ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪੋ, ਰਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਜਪਦੇ ਹੋ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਬਚਪਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਮਾਸਟਰ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੀਜੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਜਾਏ, A ਫॉर ਐਪਲ, B ਫॉर ਬੈਟ, ਕੱਕਾ ਕਬੂਤਰ, ਖੱਖਾ ਖਰਗੋਸ਼, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਘਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਘਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, A ਫॉर ਐਪਲ, B ਫॉर ਬੈਟ, C ਫॉर CUP ਸੱਪ। ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ A ਫॉर ਐਪਲ, B ਫॉर ਬੈਟ, C ਫॉर CUP ਸੱਪ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹ C ਫॉर CUP ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, C ਫॉर CUP ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਤਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਤਨੀ ਤਨਖਾਹ CUP ਸੱਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਨਖਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਓ, CUP ਕੱਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗਾ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵਧਾਓਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ CUP ਕੱਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਵਧਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੱਕ ਇਹ CUP ਸੱਪ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ CUP ਸੱਪ, ਇਹ ਤੋਤਾ ਰਟਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸੱਪ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁਣੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਤਾ ਰਟਨੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟੁਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੋਤਾ ਰਟਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਵਾਸਤੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। विचार विचार की बाणी पढ़नी, सबसे ऊपर गुर शब्द विचार, चिम चिम वरसै अमृत धारा, मन पीवै सुन शब्द विचारा। शब्द विचार जदों तक असी नहीं करांगे तां तक सानू समझ नहीं आएगी। तो शब्द विचार का मतलब हुंदा है सतगुर दी मत नूं प्राप्त करना, विजडम नूं, यूनीवर्सल ट्रुथ नूं दुनिया दे अंदर, जिहदे नाल कामयाब आत्मक जीवन भी गुजरे अते कामयाब सक्सैसफुल लाइफ भी गुजरे। ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਫੁੱਲ ਆਫ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸਿਖਾਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਫੁੱਲੈਸਟ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜੀ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਏ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ, 57 ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਲੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਸੁਨ ਕਛ ਗਿਆਨ ਨਾ ਉਪਜਿਓ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਜੀਣ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮਤ ਸੁਣ ਕਛ ਗਿਆਨ ਨਾ ਉਪਜਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੋਤਾ ਰਟਨੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਟਕੋਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਸੁਣ ਕਛ ਗਿਆਨ ਨਾ ਉਪਜਿਓ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਸ਼ ਜਿਉਂ ਉਦਰ ਭਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਾ ਕੇ ਪੇਟ ਭਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਦਰ ਭਰੋ। ਮੈਂ ਇੰਝ ਸਿਰਫ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰਮਤ ਸਿਰਫ ਸੁਣੀ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣੀ ਜਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਪੇਟ ਭਰੀ ਜਾਣਾ,
ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 3 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਨ ਤਨ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਰਤ ਮਤ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੇਪੱਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਪੱਤ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਨਿੱਜ ਪੱਤ ਦੇ ਉਸ ਮਹਿਲ ਤੋਂ, ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ, ਉਸ ਹਾਈਟ ਤੋਂ, ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਲੇ 9ਵੇਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਦਾਸੀਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਵੈਰਾਗਮਈ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਾਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲੀ ਇਤਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ। ਸਤਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਚਟਸਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਗੁਣ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਿੱਖਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਟਸਾਲ, ਇਸ ਸਕੂਲ, ਇਸ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਣ, ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੀਆਂ ਮੀਆਂ ਆਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਾਜੀ ਹਾਜੀ ਆਖਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਜੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਨਾ ਜਾਓ, ਪਾਠ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨਾ ਉਠੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ 2 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਨੀ ਰੈਣੜੀਏ ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ ਪੂਰੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ 5-6 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਪਿੰਨੀ ਰੈਣੜੀਏ ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੈਣੜੀਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਗੈ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰ, ਰੱਬੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ 24 ਆਵਰਸ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀ ਮੈਂ ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੈਂਚੀ ਮਾਰ ਲਾਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠ ਬੋਲ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਲਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮ ਪਦ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗਾ। ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਤ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੋ, ਪੁਰਾਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੂਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਦੈਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੀਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। 24 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਗ ਰਹੇ। ਪਿੰਨੀ ਰੈਣੜੀਏ ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਗੈ ਸੰਤ ਜਨਾ, ਔਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਸਦਾ ਜਾਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਜਾਗੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਲੇ 9ਵੇਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਦਾ ਜਾਗੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੁਣ, ਜੇ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਗਿਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰੋ ਅੱਜ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਗਿਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਸੂਰ ਅੱਜ ਕਰੋ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਧਰਮਰਾਜ ਜਾਂ ਜੰਮ ਪਕੜੇਗਾ। ਗੁਰਮਤ ਉਧਾਰ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਕਦ ਜੀਵਨ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੇ, ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਗੁਰਮਤ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਣੀ ਕਹਿ ਸੁਨੋਰੇ ਭਗਤੋ ਮਰਨ ਮੁਕਤ ਕਿਨ ਪਾਈ। मरने के बाद किसने मुक्ति पाई। जींदे जी तो मुकत नहीं था। बेणी कह सुनो रे भगतों
ਮਰਨ ਮੁਕਤ ਕਿਨ ਪਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੂਜਾ ਐਂਗਲ ਲਿਆ ਸੀ कि मुए हुए जो मुकत दोगे, मुकत ना जाने कोई ला, कोई नहीं जानता कि मरने के बाद मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लोग समझते ने मरण तो बाद असी फलानी जगह चले गए, फलानी जगह चला गए। गुरु पातशाह बाणी अंदर कहते ने कमन रूप दृष्टियो बिनसायो, कतै गयो ओ कत ते आयो, पता नहीं कितों आने, पता नहीं कित्थे चले जाने। रोज़ सिख सवेरे पढ़ता है और ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾ ਅੱਗੇ, ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਲਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਏ। ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨਾ ਤੇਰਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਬਿਆਨ ਰੱਤੀ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਿਰਵਾ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਦੂਰ, ਜਲ ਕੀ ਮਾਛੜੀ ਚੜ੍ਹੇ ਖਜੂਰ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਕਬਾਦ ਲਾਇਓ, ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਓ ਤਿਨ ਛਿਪਾਇਓ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਅੰਤਤਾ ਚੋਂ 0.01% तिल मात्र भी बयान कर रहा तो झूठ इंज है जैसे पानी की मच्छी पेड़ पर चढ़ गई, जल की माछड़ी चढ़े खजूर। रब की बेअंतता बारे बयान नहीं कर सकते हैं। पता नहीं किस तरह गुरु नानक साहब तो रोज़ सवेरे सिखा रहे हैं मिट्टी मुसलमान की पेड़ा पे कुम्हार, घड़ भांडे इट्टां किया जल्दी करे पुकार, जल जल रोवे बपड़ी झड़ झड़ पवे अंग्यार। हुण सारा श्लोक बयान करके आखिरी च अपना फैसला करें, नानक जिन करते कारण किया सो जाने करता। मैनू नहीं पता नहीं सिखा नूं किस तरह पता है। मरण तो बाद इंज होंदा है, अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरत इंज होंदा है, ऐ करो तो ऐ होंदा है, ऐ करो तो ऐ होंदा है। वो सारे शब्दां नूं असीं पढ़ांगे ध्यान नाल, बाहर वैसे उहदी टेप है जीउंदियां मुक्ति अंतकाल जो लक्ष्मी सिमर है, तो असीं उहदे उत्ते सैमीनार अंतकाल भी स्पैशली एक होर कीता है कि गुरु पातशाह नूं असीं पढ़ के वेखीए। अवतरे दा मतलब मरण तो बाद वाला जन्म नहीं होंदा। अर्थ गुरबाणी पढ़ के देखो, कोश पढ़ के देखो, सारा पढ़न तो बाद समझ आता है। अवतरे अपने जिस लेवल पे है उससे नीचे उतर के आ गया। अपने जिस जीवन ते खड़ा है ना, मनुखा जीवन है तो मनुखा जीवन तो थल्ले डिग पिया, मीनस पशु बिरती बन गया, मीनस पंछी बिरती कां बिरती बन गया। इसनूं अवतरे कहंदे। खैर ये सारिया गल्लां जदों असीं समझांगे तो सानू पता लगेगा कि गुरु पातशाह सानू प्रेजेंट जीवन जाच सिखा रहे हैं। नाउ कल तक असीं ये समझ चुके सां कि गुरु पातशाह कहंदे ने तेरी रब जी दे नाल दूरी घट सकदी है दिनों दिन जे तू सच दी विचार लै लवें, गुण गोबिंद गा लवें, जै सिमरत तेरी बिरती बन जाए तां औद घटत है नीत। डेली योर डिस्टेंस कैन बी डिक्रीज्ड, यू कैन फील वननेस विद गॉड। और वननेस विद गॉड फील करने का मतलब की है, डे बाई डे साडे अवगुण घटते जाते हैं, अवगुण छोड़ गुणा को तावो वाला जीवन बनता जाता है। ये निशानी है, डे बाई डे असीं रब जी दे नेड़े होई जाते हैं। हुण अगला श्लोक सी, पांच तत्त को तन रचियो। पांच तत्तां दा ये शरीर बनिया। पांच तत्त को तन रचियो, जानो चतुर सुजान। जानो दे हाहे नूं औंकड़ है। जदों भी हाहे नूं औंकड़ होए, फर्ज करो आवो मीत प्यारे मंगल गावो नारे, आवो सिख सतगुरु के प्यारो गावो सच्ची बाणी। जदों भी हाहे नूं औंकड़ लग के उचारण होएगा, उत्थे सानू उस नूं स्ट्रैस दे के उचारण करना है। तो वह हुंदा है हुक्मी भविखत काल वास्ते, फ्यूचर टेंस विच। हुण गुरु पातशाह इत्थे कह रहे हैं, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ बॉडी मिली है ना, यह पंज तत्तां दी बनी हुई है। पंज तत्त किहड़े किहड़े ने? अग, पानी, धरती, हवा ते आकाश। ये पंज तत्त ने, इन्हां पंजां तत्तां नाल मिली। हुण गुरु पातशाह ये गल सानू कौन मुआरे कौन मुआ दे शब्द विच अते देही माटी बोले पाउण दे शब्दां दे प्रकरण पढ़ांगे ना, तो उहदे अखीर च कहंदे ने मरता जाता नज़र ना आया, जो ये जानो सोए ना है। रब जी की इस सृष्टि बारे कोई नहीं दस सकता कि पंजा तत्तां दा शरीर बनया ते मरण तो बाद मनुख कित्थे गया।
गॉड नोज दिस मिस्ट्री इज विद गॉड। सानू तो यह समझना है कि मैं पंजा तत्तां दा बनया तो मैनू सफला किवें बनावां। दैट इज द गेम वी हैव टू लर्न। पंज तत्तां दा शरीर बनया, पंजा तत्ता समा जाएगा। पंज तत्त दा कुत्ते का भी बनया, पंजा तत्तां दा बिल्ली का भी बनया, पंजा तत्तां दा शेर का भी बनया, हुण सारियां दा पंजा तत्तां दा बनया। तो जे लफ्जी अर्थ छेती नाल करके अगे चल जाइए जिहदे नाल बड़े सारे श्लोक हो सकते हैं, तो कह सकते हैं जै ते उपजो नानका लीन ताई मेहमान। वो इंसान समझ ले कि जो 5 तत्वों से ये शरीर पैदा हुआ है उसी में जाके ये मिल जाएंगे। ख़त्म होगी बात। कुत्ते वास्ते भी यही है, बिल्ली वास्ते भी यही है, सप वास्ते भी यही हो, बिच्छू वास्ते भी यही हो, गां वास्ते भी यही हो। इंसान वास्ते फिर मैसेज की है विच, वो मैसेज असी लभना है। गुरु पातशाह जी दी ये मत विच रतन जवाहर माणिक ने, ये एवं राह जांदियां गवाण वाले नहीं ने। लोका मत को फक्कड़ पाए, इनू एवं फकड़ी एवं मुफ्ती दे तोल च गवा ना दिओ। यह बहुत कीमती विचार है। गुरु नानक पातशाह कहते हैं जिहड़ा असी इत्थे ही शब्द पढ़िया सी एक बारी, वो शब्द सी दीवा मेरा एक नाम। दुख विच पाया तेल उन चानण ओ सोख्या चूका जम स्यो मेल। लोका मत को फक्कड़ पाए, इसको ऐसे ही मत उड़ा दो। ये रतन जवाहर ने, माणिक ने, ये हीरे वर्गियां मत इंसान नूं देने इनू जाया ना कर, एवं ना गवा दे। हुण ਇਹਦੇ चो असी लभ के देखिए रतन जवाहर की ने भी पंजा तत्तां दा शरीर बनया है, पंजा तत्तां मिल जाएगा। 5 तत्त को तन रचियो। हुण हाहे नूं औंकड़ है तो कह रहे ने तू एवं क्लैवर बनया फिरदा है, एवं अपने आप नूं चतर सियाणा बनया फिरदा है, बड़ा अपने आप नूं मैनिपुलेटर समझदा है, एक्सप्लॉइट कर सकदा है, गल्लां घुमा सकदा है, झूठ बोल सकदा है, हेरा फेरी कर सकदा है, ऐसे ऐसे झूठ बोल सकदा है कि तेरे फेस एक्सप्रैशन तो पता ना लगे, इस तरह तू जबान दे नाल एकदम फिर जाना है। ये असली सियाणा नहीं है। यह 5 तत्तां दा शरीर बनया तो तैनूं इहदे विचों 5 तत्त एक होर पैदा करने ने जिन्हां दा तू शरीर बनाना है। वो 5 तत्त किहड़े ने ये समझना है। 5 तत्त को तन रचियो, वो तत्त ये ने जिन्हां दे नाल बॉडी बनती है। सो सिंपल। पर हुण उन्हां 5 तत्तां दी गल करिए। गुरु पातशाह कहंदे ने मन मरै धात मर जाए। धात की है? विकार। विकार की ने? मेजर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। एक काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तेरी बॉडी दे अंदर हन 5 तत्तां दे नाल ही आए ने, लेकिन इन्हां 5 तत्तां दे नाल ना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दे नाल बैलेंस करके इन्हां नूं काबू करके इन्हां दे नाल अपनी एक नवी बॉडी बना। वो जिहड़ी बॉडी बनेगी तेरी, वो जिहड़ा तेरा अंतर आत्मे का एक नवा जीवन बनेगा। सतगुरु के जन्मै गवन मिटाया वाला, सतगुरु दे घर जदों तू जम्मेगा, वो वाला जिहड़ा 5 तत्तां दा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार काबू बैलेंस्ड अवस्था वाला जिहड़ा तू जीवन बनाएगा, ओनू जानो चतुर सुजान। तब तुम जानो कि चतुर सुजान है, अदरवाइज तू कनिंग है, अदरवाइज तू चंचल मत है। गुरु पातशाह कहंदे ने गुरसाखी अंतर जागी गुरु दी सिੱਖਿਆ दे नाल। साखी डज नॉट मीन कहानियां दे नाल, साखी डज नॉट मीन कोई हिस्टोरिकल गल्लां करन दे नाल। गुरसाखी का उजियारा तां मिटिया सगल अंधियारा। साखी दा मतलब सिੱਖਿਆ। गुरसाखी अंतर जागी तां पता की होया, जदों मेरे अंदर जाग पई गुरु दी सिੱਖਿਆ दे नाल प्रकाश हो गया, तां पता की होया मैनू, मेरी जिहड़ी कनिंगनेस वाली, एक्सप्लॉइट करन वाली, लोगों को लड़ान वाली, लोगों नाल वैरी मीत रखन वाली, लोगों नाल तेर मेर करन वाली, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा करन वाली, अंदरों होर बाहरों होर, जियो मैले बाहरों निर्मल, गलियां सी चंगियां चारी बुरियां, मन होर मुख होर, ऐसी सारियां जितनियां भी हिपोक्रेसियां दियां मेरियां आदतां सी ना, गुरसाखी अंतर जागी तक ही होया तां चंचल मत त्यागी। मेरी चंचल मत चली गई। जदों चंचल मत चली जाती है ना, तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार काबू आ जाते हैं, और काम क्रोध लोभ मोह काबू आ जाते हैं तो गुरु साहब कहते तां तू इसनूं जानो चतुर सुजान। हुण इत्थे चतुर का मतलब कनिंग क्लैवर वाला नहीं है। चतुर का मतलब हो गया सुजान नाल लगा होया, पॉजिटिव सेंस कह रहे हैं, तां इनू तू चंगा समझ,
ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਮਝ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਵਾਲਾ ਸਮਝ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਸਮਝ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਤਰਾਈ ਸਿਆਣਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਤਨੀ ਚਤਰਾਈਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਤਰਾਈ ਸਿਆਣਪ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਚਤਰਾਈ ਸਿਆਣਪ ਸਾਡੇ ਕਾਮ, ਸਾਡੇ ਕ੍ਰੋਧ, ਸਾਡੇ ਲੋਭ, ਸਾਡੇ ਮੋਹ, ਸਾਡੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾਉਂਦੀ। ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਚਲ ਮੱਤ ਘੁਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਤਰਾਈ ਸਿਆਣਪਾਂ। ਚਤਰਾਈ ਸਿਆਣਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈਆਂ, ਤੁੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋਦੀਏ ਸੋਈ ਸੁਖ ਪਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਂਚ ਤਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ, ਜਾਨੋ ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨ, ਜੈ ਤੇ ਉਪਜਿਓ ਨਾਨਕਾ ਲੀਨ ਤਾਏ ਮਹਿਮਾਨ। ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਜੀਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਜੀਨ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਨਸ ਭਰਿਆ ਆਣਿਆ, ਮਾਨਸ ਭਰਿਆ ਆਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਅਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਅਹੰਕਾਰ ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮਾਣ ਸਕਦਾ। ਲੀਨ ਤਾਏ ਮਹਿਮਾਨ, ਜੈ ਤੇ ਉਪਜਿਓ ਨਾਨਕਾ, ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਅਹੰਕਾਰ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਤੇ ਬੋਲੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਜਿਤ ਪੀਤਾ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ ਬਰਲ ਪਵੈ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਰਥ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਵਰਜ਼ਨਸ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ 24 ਘੰਟੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਨਾਲ, ਘਰ ਦੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨਾਲ, ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਾਂਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਲੈ ਲਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਕਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਲੋਕਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਚਾਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਲੋਕਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵੋ। ਨਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਲੋਕਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੀ ਨਾ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਾ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਤਨੀ ਡੇਰਿੰਗਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਤਨੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਔਰ ਪੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਫਕ ਵੀ ਨਾ ਆਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਰ ਖੋਲ੍ਹੀਏ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੇੜਾ ਖੁਸ਼ੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬੰਬੇ ਤੁਸੀਂ 62 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਬੰਬੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੇਪ ਬਾਹਰ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਬੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਲਕੋਹਲ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਨਾ, ਬੀਅਰ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਨਾ, ਡਰੱਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਾਂਦੇ, ਪਰ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ, ਬਹੁਤੀ ਨੌਲੇਜ ਦਾ, ਬਹੁਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਬਹੁਤੀ ਸਿਆਣਪ ਦਾ, ਬਹੁਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ, ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਬਹੁਤੇ ਆਕੜ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੇਸਡ। ਤਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
जित पीता मत दूर होए बरल पवै विच आए, क्योंकि इस तो पहली जिहड़ी पंक्ति है वो पंक्ति है मानस भरिया आणिया मानस भरिया आए। मनुख इंसान मनुष्य काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बनकर यहाँ पर आता है। मानस भरिया भर के काम क्रोध लोभ अहंकार नाल आए, मानस भरिया आणिया मानस भरिया आए। हुण कहंदे ने इहदे अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सारे भरे होए ने, पर इन्हां चों वन ऑफ दैम जित पीता है। काम पिएगा तां भी तेरी मत ठिकाने नहीं रहनी, क्रोध पिएगा जित पीता है तां भी तेरी मत ठिकाने नहीं रहनी, लोभ पिएगा फिर भी मत ठिकाने नहीं रहनी, मोह पिएगा तां भी, हंकार पिएगा तां भी। इन्हां पंजां चों जित पीता मत दूर होए, तेरी अकल तेरे पास नहीं रहती, तेरा दिमाग ठिकाने नहीं रहता। बरल पवै विच आए, अकल ठिकाने नहीं रहती, गंदगी होर विच आ जाती है, वायरस होर विच आ जाता है, तो उहदे नाल की हो जाता, अपना पराया ना पछाणे। अपना पराया समझ ही नहीं आता। जदों क्रोध चढ़ता है तो मनुष्य जिस अपनी इस्त्री नूं इन्ने प्यार कर रहा होंदा उहदे ते क्रोध करन लग पैंदा। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖੋਆ ਮੋਈ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਹੀ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਾ ਪਛਾਣੇ। ਖਸਮੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾਏ ਮੀਨਸ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖੁਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਐਸੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹਨੇ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝਿਆਂ ਬਗੈਰ ਬੈਲੈਂਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਦੀਰਾ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ, ਐਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਧਾਰਮਿਕ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਸ ਫੀਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਤਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਤਵੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਅਤੇ ਦੋਜ਼ਖ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। साडा सब दे नाल प्यार आ जाएगा। पांच तत्व को तन रचियो जानो चतुर सुजान। इसको चतुर सुजान तभी समझ सकते हो अगर तुमने इसमें से काम क्रोध लोभ अहंकार को काबू किया और जिस रब जी तो ये काम क्रोध अहंकार मिले ने उन्हां नाल एक मिकता अवस्था प्राप्त की। अदरवाइज ये पंज तत्तां दा मिट्टी पानी अग हवा धरती जिहड़ा बनिया होया यह रब जी दे नाल एक मिक नहीं होंदा। लीन ताए मेहमान रब जी वो होर गेम है। मरण तो बाद तो होना ही है, भावें मनो भावें ना मनो, भावें चोर बनो भावें साध बनो, भावें शरीफ बनो भावें बदमाश बनो, मरण तो बाद तो सारे ही मिट्टी हो जाते हैं। ताकि सारे लीन ताए मेहमान हो गए? नहीं, कहते ने ता मन मान ओए इसको एक्सेप्ट कर कि ये तब चतुर सुजान है अगर इसने काम क्रोध लोभ अहंकार के पांच तत्वों से अपने को काबू करके बनाया एक नया जीवन। जदों ये काम क्रोध लोभ अहंकार काबू आ जान ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਵਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਸੰਤਨ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜਨੀ ਹੈ, ਬਹੁ ਵਚਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਜਮਨਾ ਭਾਉ ਨਿਧ ਉਤਰੈ ਪਾਰ। ਭਾਉ ਨਿਧ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਕਾ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਪੂਜਨੀਕ ਵੀਰ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਪੂਜਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਿਬੇੜਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਨਿਬੇੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਕੌਣ ਹਿਸਾਬ ਲਏਗਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੈਦ ਕਬੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ। ਕੈਦ ਕਬੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਹੈ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਿਬੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੇ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਕਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ कि नहीं। आगे नरक या स्वर्ग या बिखड़े तरणी नदी के अंधेरे बिखड़े कांटों वाले रास्ते में, पुरसलात का पंथ दुहेला वाले मुश्किल रास्ते में क्या ये तेरा साथ देंगे कि नहीं। तो उसको संतों ने पूछा, फिर वो घर गया, सब ने कहा नहीं हमने तेरे साथ नहीं मरना। समझ में आ गया ये मरण तो बाद वाली गल नहीं है। क्यों?
क्योंकि असी पिछलियां दिनां दियां कई विचारां विच सांझ कर चुके हैं कि अंत की बेला, अंत की वार, अंत निबेड़ा दा मतलब जींदे जी अज हुणे इत्थे ही दे बारे गल चल रही है। जदों गुरु पातशाह कहंदे ने नानक फिक्के बोले हैं तन मन फिक्का होए, फिक्को फिक्का सदिया, फिक्के दरगी फिक्का फिक्के फिक्की सोए, तो वह सानू अज की गल कर रहे हैं ना भी जे तू फिक्का बोलेगा तो फिक्का हो जाएगा। तो मेरे अज का जीवन मेरा फिक्का है, मरण तो बाद मैनू दरगाह सजा मिलेगी। मैं तो अज सजा पा रहा किवें? फिक्को फिक्के सदिए, फिक्के फिक्की सोए, फिक्का दरगाह सुट्टी है। दरगाह सुट्टी है मीनस अपने अंदर दे, अंदर राजा तख्त है, बैठा करे न्याओ। मरण तो बाद कोई रब जी ने पता नहीं, पर गुरमत ये कहती है जिहड़ा रब तुसी आसमानां ते समझिया होया वो इत्थे अज है। फरीदा खालक खलक में, खलक वसै रब माए। इस ये जग सच्चे की है, कोठड़ी सच्चे का विश्वास। अज रब जी इत्थे ही ने, अज ही इत्थे हाजर नाजर ने। तो अगम रूप का मन में थाना, जिस भगवान को, खुदा को, राम को, अल्लाह को, वाहिगुरु को, गॉड को तू आसमान पर कहीं समझ रहा है, हेवन में कहीं समझ रहा है, कहीं दरगाह लगा के कचहरी लगा के बैठे हैं, वो तो तेरे हृदय में है। दो हो नहीं सकते, एक है। जे एक है वो हृदय च है। अगम रूप का मन में थाना, जिस भगवान की बात की जा रही है वो तेरे हृदय में है। मन में थाना है, इत्थे ही कचहरी ला के बैठे ने। हुण जदों इत्थे फिक्का दरगाह सुट्टी है अपनी अंतरात्मा तो, उसी वेले तू सच तो डिगा दिता जाता है। तो लोकी समझते ने मरण तो बाद दरगाह, मैनू कोई हक नहीं है कि मैं उन्होंने इनवैलिड करा। मरण तो बाद वाली दरगाह च लोकां नू रस्ता पता होएगा, रियल एस्टेट वालियां ने उत्थे प्लॉट भी लोकां वास्ते लैके रखे हुए ने, पर मैनू नहीं पता। लेकिन अज की जिहड़ी दरगाह है, गुरु ग्रंथ साहब के अनुसार नकद जीवन सारी दुनिया को प्रेजेंट टेंस में सुनिया दे रहे हैं कि मरने के बाद की बातों को छोड़ो, टुमारो की बात छोड़ो। अगर आज ठीक नहीं तो कल ठीक नहीं हो सकता। आज में से कल पैदा होता है, आज को ठीक कर लो। और आज की दरगाह पूछो, गुरु साहब ने पूछिए। मैं शब्द पढ़ के हैरान हो रहा सा। गुरु पातशाह कहते ने इस धरती ते लोकी एक कचहरी बनाते हैं, कोई कुछ गलती करे उन्होंने उस कचहरी च सजा देंगे ने। गुरु पातशाह ने मानस किया दिबाणो, इंसान ने कोई कचहरी बनाई है, कोई नस भज निकले, उसमें से कोई बच के भी निकल सकता है। झूठे वकील होंदे ने, झूठियां गवाहियां होंदियां, सब कुछ हेरा फेरी की जाती है। कई बारी प्रूफ पूरे नहीं मिलते ने, कई बारी कातिल बड़ी दूर नस जाता है, कुछ नहीं पता लगता। मानस किया दिबाणो, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी है, यह मेरी कविता नहीं है। तुहानू इन्हां गल्लां ते विचार घर जाके करनी है कि 21st सेंचुरी अंदर पिछले 1000 सालों तो असी कुताई खा रहे हैं। हुण इस पक्षों विचार के तो देखिए, विचार के जदों देखोगे मेरे चेले नहीं बन जाओगे, गुरु पातशाह जी की मत के नेड़े पहुंच जावांगे। आई एम नथिंग, मैं अज नहीं तो कल भी नहीं। गुरु पातशाह जी की मत नूं पुछिए, कह रहे हैं धरती ते कोई कचहरी लगती है, उस कचहरी तो कोई नस भज निकले। अगे कहते ने मानस किया दिबाणो, कोई नस भज निकले। हर दिबाणो, रब जी दे दीवान कचहरी तो कोई कित्थे भज जाया, कोई कित्थे भज के जा सकता है। रब जी की कचहरी तो कोई इंसान भज के नहीं जा सकता। मरण तो बाद वाली गल नहीं चल रही, जींदे जी की चल रही है। दुनियावी जज को खरीद सकते हो, वकील को खरीद सकते हो, मिनिस्टर को खरीद सकते हो, हेरा फेरी कर सकते हो, रिश्वत दे सकते हो, पर जिहड़ा हर दीवान है उहदे तो कोई कित्थे भज जाया। हुण गुरु पातशाह डेफिनेशन पूरी कंप्लीट करते हैं। सानू ये नोट करना चाहिए कि गुरु पातशाह जी की डेफिनेशन गुरु पातशाह जी की बाणी चों निकलती है, सानू उहदे नाल स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। तो गुरु पातशाह अगे डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं पूरे शब्द, कहते हैं सो ऐसा दीवान वसिया भगतां के हृदय, हृदय विच होंदा है।
जो इंसान रब जी का दीवान कचहरी अपने हिरदे 'ਚ समझ लैंदा ਉਹਨੂੰ भगत कहते हैं। तो वह दीवान जिहदी दुनिया गल्लां करदी है कि जिहदे विच सजा होएगी वो इत्थे है। सो दीवान वसिया भगतां के हिरदे। हुण ये जो भगतां के हिरदे वाला समझ आ जाता है ना, तो पता लग जाता है मैं हुणे हेरा फेरी कीती, मन मेरे भूले कपट ना कीजिए। मैं कपट सोचा, सोचण सार मेरे हिरदे दे दीवान विच मैं पकड़िया गया। ए अंत निबेड़ा है, मैनू उत्थे ही मेरा निबेड़ा हो गया। ऐ कर करे सो ऐ कर पाए, उसी वेले नकद हिसाब किताब हो गया। बाद विच होए ना होए। मैं एक गोवा का होटल का किस्सा पढ़ रहा सी कि होटल बुक कराण कोल कमरा लैण गया है, होटल के मैनेजर कोल खड़ा है, कमरा दिखाओ, टैरिफ दिखाओ, कितने कमरे, कैसे, कितने हज़ार। उन्होंने कहा 4,000 का कमरा है, एयर कंडीशन लगा हुआ, ये वो, अच्छा ये कमरा दे दो। वो जो उन्होंने फाइनल कर रहा सी तो उन्होंने कहा अच्छा मैं देखता हूँ कौन सा कमरा खाली है। वो देखता पिया सी तो बंदा जो कस्टमर है होटल विच रहन गया है, इन्हें बाहर खिड़की तो देखा, खिड़की के बाहर आवाज़ आई, एक इस्त्री बोल रही थी बचाओ बचाओ। वो पिछे एक बंदा होर होटल का बहरा जिन्हें ड्रैस पाई हुई सी होटल की, पता लग रहा सी होटल का बहरा है, वो पिछे दौड़ रहा सी और इस्त्री आवाज़ मारी है बचाओ बचाओ बचाओ। ए उन्होंने कहता है तुम्हारा इतना गंदा होटल है, इतनी बदमाशी यहाँ पर चलती है कि यहाँ पर स्त्री की इज्जत लूटते हैं। कहता आपने सुना वो बोल रही है बचाओ बचाओ और वो भाग रही है, अभी पकड़ा तो नहीं ना, अभी कुछ किया थोड़ी ना, आपने ऐसे ही समझ लिया बेकार है होटल। व्यंग है। असी समझते हैं जो एक्शन लिया जाएगा तो भैड़ा साबित होएगा। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਬਾਣ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ, ਲੇਖਾ ਨਿਬੇੜ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਾ ਬਸ, ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈ। ਸੋਚਣ ਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਬਾਣ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਦਰਗਾਹ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਾਹ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੂੰਹ ਥੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 5 ਤੱਤ ਦੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਸਵਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਵਾਰ ਵੀ ਨਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੰਵਾਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਾਰੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਸੰਵਾਰੈ ਮੈਂ ਮਿਲੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਖ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ, ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। अपने आप को सवार, दुर्लभ दे सवार, जे सवार लई तो समझ, अदरवाइज जाए ना दरगाह हार। तू अंदर हार जाएगा जे अपनी अपनी दुर्लभ दे नहीं संवारिया। हुण गुरु पातशाह कहते ने मन तन थाप किया सब अपना, यो आवण जाना। इनू आवण जाना कहते ने कि मेरा मन टिकाणे नहीं रहिंदा। जदों जदों मैं काम क्रोध ओंकार के चक्रां विच फसदा और मेरे अंदरों लुटिया जाता है और मेरा जीवन बर्बाद होंदा है, मैं दीन ईमान तो लोटदा और मेरी अंदर की पत लुटी जाती है, तो इनू कहते हैं आवण जाना। गुरमत की नज़र विच आवण जाना वो नहीं शरीरक मरने के बाद मरेंगे, फिर पुनर्जन्म को होगा, या कुत्ता बुली बनेंगे या फिर इंसान बनेंगे, उन्होंने आवण जाना नहीं कहते हैं गुरमत विच। एक गुरमत की डेफिनेशन मन तन थाप किया सब अपना, एओ आवण जाना, इनू आवण जाना कहते हैं। इस नज़रिए तो सिर्फ पढ़ के वेखना, होर शब्दां ते ला के वेखना। जिथे जिथे आवण जाण की गल होएगी, जिथे जिथे आवागमन की गल होएगी, जिथे जिथे पुनर्जन्म की गल होएगी, जिथे जिथे बौड़ जन्म धारिओ की गल होएगी, वो सब जगह मनुख दीआं करतूतां की गल हो रही होएगी। जिथे जिथे नाम की गल हो रही होएगी, उत्थे नाल नाल मनुख दीआं करतूतां की गल हो रही होएगी। मीनस ऐसी विजडम मत लै, पतित पावन प्रभ नाम तुम्हारे, तुम्हारा नाम पतित को पावन कर देता है। हुण पतित की डेफिनेशन समझाते हैं, सारा शब्द पढ़ना। पहला पदा लोभ मोह मगन, मैं लोभ मोह च मगन रहना, अपराधी करणहार की सेवना साधी, ए मेरा पतित पुण है। मनु ये बारे तुसी सुमत दिओ, तुहाडा नाम की हो गया, तुहाडी मत। पतित पावन प्रभ नाम तुम्हारे, राख लियो में निर्गुणियारे। मन टिकाने लग जाए, घट घट में हरजू बसै समझ आ जाएगा। संतन के पुकार, कहो नानक ते भजमना, भाओ निध उतरै पार। भाओ निध अज दे श्लोकां विच सानू ये बार बार समझाया जाएगा कि जेड़ा इंसान भाओ निध पार उतर चुका है,
ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਭਉਨਿਧ ਪਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ, ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਛਿੱਥੇ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕਦਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਉਬਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਡਰ। ਭਉ ਨਿਧ ਹੁੰਦਾ ਡਰ ਦਾ ਜਲ, ਡਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਭਉਨਿਧ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿੰਪਲੀ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਖ ਦੁਖ ਜੈ ਪਰਸੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਹੁਣੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਖ ਤੇ ਦੁੱਖ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈ, ਪਰਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਸ ਬਣਿਆ ਸਪਰਸ਼ ਤੋਂ, ਸਪਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਟੱਚ। ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, सुख दुख जय परसै नहीं, जिस इंसान के मन को सुख और दुख, हुन अगले जितने श्लोक ने 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये सारे एक हुणे तो गुरु पातशाह गल कर रहे सन ना मन नूं, पहले जितने भी 12 श्लोक ने, इन्हां तो बाद उस उच्ची आत्मक अवस्था दे इंसान दे लक्षण बयान कर रहे ने, डैट मेरे मन तू ये बन सकना है। मते सोचें, आम बंदा कह दिंदा जो वीर जी बात कर रहे हैं ना, आप बोलते हैं कि भी ऐसे करना चाहिए। वीर जी जे तुहाडियां गल्लां ते टूरन लगी है ना कि किसी नूं माफ़ भी कर दईए, किसी नूं जतलाईए ना कि तेरी गलती है, नौकर दी भी गलती उन्होंने ना जतलाईए, उन्होंने वक्त सिर उन्होंने इम्तिहान ना सिखाईए, जे लैसन ना जे दईए तो वीर जी तो सिर ते चढ़ जाते हैं, लोग तो सानू चुराए ते वेच के खा जान। ए तुहाडियां गल्लां किताबची ने, सिर्फ लैक्चर ही चंगियां लगदियां ने। ਇਹਦਾ मतलब हो गया मन आत्मा कमज़ोर है। ਇਹਦਾ मतलब यह हो गया मन ये समझ रहा कि असी तो दुनियावी जीव हाँ जी, ये तो कोई ब्रह्म ज्ञानी होणगे, ये तो जी कोई रब भी होएगा, ये तो कोई देवी देवते होणगे। गुरु पातशाह समझा रहे हैं उन्होंने लक्षण कि ए मेरे मन, ए दुनिया दे इंसान, तू ये बन सकना है। ਭਉਨਿਧ ਪਾਰ ਜੇ ਉਤਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਜੇ ਉਹ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਪਦਾਰਥ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਐਂਜੋਏ ਦੈਮ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, तीन किस्मां दे दुख असी मन्ने हुए ने। एक साडे शरीर उत्ते कोई दुख आ जाए, दूजा कोई पशु या पंछी सानू कोई दुख दे जाए, तीजा कैलेमिटी कि हड़ आ गया, तूफान आ गया, बारिश आ गई, भूचाल आ गया, कुछ भी ऐसा आ जाना। ये तीन किस्मां दियां चीज़ां दे नाल सानू कुछ भी मिसहैपनिंग हुंदी लगदी है, इहदा नाम असी दुख रखिया है। सुख दुख ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੀਏ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਤਨੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਇਤਨਾ ਦੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਮੈਂ PhD ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਸਨੇ ਚਾਈਲਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ 3 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 97% ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਆਈ ਹੇਟ ਮਾਈ ਮੰਮੀ, 94% ने क्या आई हेट माई पेरेंट्स। क्यों? जब मैं सोना चाहता हूं सुबह तो मुझे सोने नहीं देते, और जब रात को मुझे नींद नहीं आ रही तो बोलते हैं लाइट बंद, हिलना नहीं चाहिए, आंखें बंद, सो जाओ। जब मैं सोना नहीं चाहता तो मेरे को ज़बरदस्ती सुलाते हैं, जब मैं सोना चाहता हूं तो मेरे को पकड़ के उठा देते हैं, बस मिस हो जाएगी। है वो चाइल्ड साइकोलॉजी का प्रोफैसर दस रहा है। पर वो निक्का जिहा बच्चा मन अंदर वैर रख लेंदा है, जब मैं बड़ा होऊंगा ना
फिर मैं अपनी मर्जी से आराम से रहूँगा, पता नहीं है कब मम्मी पापा से जान छुटेगी। यही कारण है आज दी डेट विच बच्चा घर नहीं आना चाहता। यही कारण है कि बच्चा राती लेट आवर्स घर आता है। यही कारण है बच्चा शराब ते ड्रग पींदा है। यही कारण है कि बच्चा जे घर आ जाता है तां भी अपने कमरे च बंद रहता है, मम्मी पापा नाल गल नहीं करना चाहता। यही कारण है कि वह ज़्यादातर सैलफोन ते मसरूफ रहता है। यही कारण है कि वह इंटरनेट ते ज़्यादा मसरूफ रहता है। यही कारण है कि वह दोस्तां मित्रां नाल ते हस के गल कर रहा होंदा है, पर अगर मम्मी पापा गल करन अच्छा ना, उसी वेले फेस चेंज हो जाता है। ये सारे कारण की ने? पढ़ जाओ किसी तरह से, पढ़ जाओगे तो क्या होगा, अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे। बई तुसी ठेका चुक्या होया इन्होंने पैरों ते खड़े करन दा, अपनी भली निबेड़ो। अंतरात्मा करके तो तू पिंगला है, आप तो तू अपने आत्मक तौर पर पैरों ते खड़ा नहीं है। इन्हां बच्चों को तू खड़ा करना चाहता है, बच्चे खड़े हो जाएंगे, 50,000 60,000 या 1 लाख रुपया तनख्वाह भी ले आएंगे, पर तेरे तो दूरी हो जाएगी। उहदे नाल ये बच्चे अज दुख दारू सुख रोग पिया, दुख दारू बन जाएगा। ये बच्चे उस जिहड़ी तुसी पढ़ाया इनू ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਝੁੱਗੀ ਸੀ, ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਮਕਾਨ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਰੋਗ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਂਦਨੀ रात हो तो बरसात बुरी लगती है, चांदनी रात हो तो बरसात बुरी लगती है, घर में अर्थी तो बारात बुरी लगती है। कहता लाख समान जुटाया मगर असी समझ रहे हैं सामान जुटान विच सुख है। जदों असी अपने धियां पुत्रां दे रिश्ते लैंदे आ ना ते सामान वाला ही घर देखते हैं, फलाना घर बड़ा सौखा है। वो कहती है, वो शायर उत्थे लिखदी है, लाख समान जुटाओ मगर ए दोस्त दिल में हो दर्द हर बात बुरी लगती है। दिल विच दर्द है, मन टिकाणे नहीं है, तो ये सुख रोग पिया बाहरों असी सोच रहे हैं मेरी धी नूं अमीर दे घर विआह देंगे, वध तो वध दाज दे के कूड़े का टोकरा बना के कवांगे तू मेरी धी लंगड़ी लूली है, इसको कूड़े के टोकरे की तरह उठा के ले जाओ किसी तरह, साथ में हम तुमको और पैसे देंगे। जिवें जमादारनी नूं कहंदे ना, एक मैं बार बार गल बोलना कि जमादारनी नूं जो असीं कहंदे ना फालतू का कूड़ा उठाओ, नहीं जी नहीं मैम साहब आपने मेरे को बोला हुआ इतनी तनख्वाह देंगे, फालतू क्यों दूँ? नहीं अच्छा तेरे को 100 रुपये और दूंगी, ये वाला भी कूड़े का टोकरा उठा के ले जा। फालतू देंदे ना, इंज असीं अपनी धी नूं कूड़े का टोकरा बना के कहंदे आ तुसीं तुहानूं सोना देंगे, कैश देंगे, मकान देंगे, ये करांगे वो करांगे, ए कूड़े का टोकरा भी लै जाओ। सोच रहे होंदे उन्होंने सुख मिलेगा, उन्होंने सुख मिलता नहीं है। वो अगे जाती है उत्थे डिप्रैशन ही चली जाती है। क्यों? पति गल नहीं करता, हर वेले मस्त है। माँ प्यो कहते ने पढ़ाया, काम काज लगाया, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए ने, इनू पढ़ाया सी, इनू बिजनेस खड़ा किया, लै काम तो ही ना जाए, तेरे कोल बैठा रहे। उधर वो तंग करते हैं। तो दूजे पासे कई कुड़ियाँ, ए हुणे एक माता जी मेरे नाल बाल गल कर रहे सन कि बई मैनू तो मेरी नूह नहीं परेशान किया है। लोकी लभदे ने चुन चुन के ऐसे घर लभदे ने कि केड़ा मुंडा चंगा है, केड़ा मुंडा पढ़ गया है, तो इन्हां दी प्रॉपर्टी कितनी है, इस सारी नूं लईए ते बुढ़ा बुढ़ी नूं घरों बाहर कढीए। वो कुड़ी पहले ही तैयार होके आती है। मैं बार बार सिर्फ कुड़ियां दी फेवर दी गल करदा, इहदा मतलब ये नहीं है कि कुड़ियां सिर्फ चंगियां होंदियां ने। ज़्यादातर कुड़ियां नूं तंग कीता जांदा है, उन्हां नूं साड़िया जांदा है, पर कई जगह कुड़ियां भी। इस करके असीं एक सैमीनार कीता सी, अपनी बेटी नूं इतनी चंगी बेटी बनाओ ताकि अगे जाके सोहनी नूं साबित होवे, उत्थे शशि कला ना साबित होवे, उत्थे जाके बीबी पानी साबित होवे। अपनी बच्ची नूं इतना प्यार नाल पालो। लेकिन असी सोच रहे होंदे आ मैं अपने धीया पुत्र दा उच्चे घर विच कीता, रोग बन जाता है। हुण गुरु पातशाह कहंदे ने सुख नाही रे हर भगत बिना, इस तो बिना सुख नहीं मिल सकता। सच नूं समझ लै, सच नूं नहीं समझा, सुख दुख जै पर सै नहीं, लोभ मोह अभिमान कौन नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान। वो इंसान भगवान की मूरत ही है, वो इंसान भगवान जैसा ही है, रब रूप ही है। जिहड़ा इंसान लोभ मोह तो ऊपर उठ जाता है, अभिमान तो, इसका मतलब लोभ मोह अभिमान, ये तीन साडे दुख दे कारण ने। दुख दारू,
ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਦੁਖੀ ਦੁਨੀ ਸਹੇੜੀ ਹੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲੱਗੈ ਦੁੱਖ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੱਥੀ ਭੁੱਖ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੂਪੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੈ ਜਾਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੱਥੀ ਭੁੱਖ। ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਤੇ ਲੱਗਣ ਦੁੱਖ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਬਦਾਮ ਛੁਹਾਰੇ ਖਵਾ ਕੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਖਮਲ ਦੇ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਤਨਾ ਬਚਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਤਨਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਬੱਚੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਤਨਾ ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਮਾਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਘੜ ਲੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੜ ਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਵਸੇਂਗੀ। ਪੇਵ ਕੜੇ ਸ਼ੌ ਸੇਵ ਤੂੰ ਸਹੁਰੜੇ ਸੁਖ ਵਸ, ਗੁਰਮਿਲ ਚੱਜ ਅਚਾਰ ਸਿੱਖ ਤੁਧ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੁੱਖ। ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ट्रेन का कांटा बदल गया, जाना सीधे पासे चाहिए सी कुराए चला गया। वो है कि मरने के बाद भगवान जी का घर सौरे घर जाएंगे। हुण तुसी सोचो जिन्हों ने क्वेश्चन लिखा इन्हां दा मैनूं कल भी फोन आया सी कि जी तुसी इस शब्द की विचार करो कि इस शब्द का की मैन है कि जी सबना सौरे वंजना सब मुकलावण हार। शब्द ਦਾ ਰਹਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣੇ ਟਾਈਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਜਿਸਟ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀਨ ਇੰਜ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਲੇਠੀ ਵਿੱਚ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, किसी भी ढंग के नाल जबान करके कह कुआ के 2 4 5 साल वाली जम्मी नूं या 8 साल वाली नूं हुणे नाबालिग है उहदा विआह कर दिता जाता सी, पर उहनूं मुंडे दे नाल सोहरे घर टोरिया नहीं सी जाता। इसी धरती ते जींदे जी उहनूं अगे टोरिया नहीं सी जाता। पर जदों बायोलॉजिकली शरीरक तौर ते मुंह जोबन वाली हो जाती सी, उहदा शरीरक भोग नूं भोग सकता है, आपोजिट सैक्स के नेड़े जा सकता है, उसनूं माण सकता है, बच्चा जम सकता है, तो उस वेले ना घर वाले ना मुकलावा देंदे सी। मुकलावे वेले कुड़ी नूं टोरिया जांदा सी, विआह पहला होया है। हुण गुरु पातशाह कहंदे ने सबना सौरे वंजना, सौरे ते सारे जा सकते हैं, विआह ते सब दा हो सकता है, सब मुकलावण हार। ईच एंड एवरी सिंगल बीइंग कैन अचीव दिस के तू मुकलावणहार हो सकती है, बशर्ते कि तू उस लैवल ते आ, तू मुकलावणहार की अवस्था तक पहुँच, अपना जीवन उंज बना। असी सारे रब जी दे नाल विआहे होए हां, अज ही हुणे ही। पेवकड़े शो सेव तू सौरे सुख वस। हुण जिहड़ी पेवकड़े रहिंदी है वो शौ सेव तू सौरड़े सुखवास किवें सुख वस सकती है। गुरमिल चज चार सिख तुद कदे ना लगन दुख। पेवकड़े का मतलब हो गया साडा ए वाले इसे जीवन विच जदों असी दिनों दिन वड्डे हो रहे हैं, ए पेवकड़ा है। तो जदों असी अपने अंतर आत्मे तो अपने आप को सवार के इकमिक रब जी नाल हो जाते हैं, वो सौरे घर मुकलावा हो गया, रब जी के घर चली गई। अंतर आत्मा ते आज मिलावा शेख फरीद आज ही उन्हें मेल हो गया। सखी आओ सखी वस आओ सखी असी पिर का मंगल गाँव है कि जदों असी तपदा परोपकार की बिरती रखते हाँ तां परोपकार करन वेले साडे शरीर उत्ते जितने दुख झेलते हैं वो दारू बन जाते हैं, सानू पेशेंस आ जाती है। सुख दुख जै परसै नहीं लोभ मोह अभिमान। लोभ कहते ने दूजे का पदार्थ लैण की इच्छा, मोह कहते ने भरम भुलेखा।
ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮੋਹ, ਅਭਿਮਾਨ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਬੇਹੋਸ਼ੀ, ਤਿੰਨ ਕੋ ਮੋਹ ਭਿਆ ਮਨ ਮਦ ਕਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੋਹ ਮਦ ਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੈਂ ਅਰਜੂ ਬਸੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸ਼ਲੋਕ ਅਗਲੇ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੰਸਰਨਡ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਪੱਖਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਬਚ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰੂੜੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੰਲਪ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੂੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਗੋਲਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਹਰ ਬਰਛਾ ਪਕੜ ਕੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਮੀਰ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਬੀਜਿਆ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੈਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਨ ਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਆਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖੜੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਅਮੀਰ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਬੀਜਿਆ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੀਜਣਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਰਹਿਣਗੇ। ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈਸਵਨ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਵਿੰਡੋ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਸ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੈਲਪਲਾइन ਦੇ ਨਾਲ, कि मुड़ के ऐसा बच्चा सड़कों पर भीख ना मांगे। इनके लिए फ्री स्कूल खोल दो, इनको जुत्ती ले दो। ये चढ़ी धूप में ऐसे करते हैं, इनको कौन यहाँ पर भीख मांगने भेजता है? उस गैंग को ढूंढो। अगर वो मम्मी पापा भेजते हैं तो उन मम्मी पापा को पढ़ाओ कि बच्चे का जीवन मत बर्बाद करो। वो बच्चा रूढ़ी से पैदा नहीं होएगा, जिदे ते अफसोस है कर्मा ते कि भी ये गरीब बेचारा रूढ़ी से पैदा, उन्होंने एयर कंडीशन घर ले आओ, वो डनलप ते बच्चा पैदा हो जाएगा। सो सिंपल, बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है। पर असी गुरु पातशाह जी की मत नूं कंड दे रखी है, क्योंकि सानू वंड छकना पसंद है ही नहीं। साढ़े घर धी जम्मी, बचपन तो ही असी जोड़ जोड़ के जमा करी जा रहे हैं, क्योंकि दाज देंगे। असी सारी सोसाइटी आप खराब की हुई है, और असी कह रहे हैं गरीब रब जी ने बनाए ने। ना रब जी ने गरीब बनाए ने, ना रब जी ने अमीर बनाए ने। ये सारी साडी मनुख दी इत्थे ही कोई गलती है। काश 21st सेंचुरी ऐसे ढेर सारिया विचारा, ढेर सारा मीडिया और लैक्चर किए जान, ता इंसान सब सुखदाता राम है, दूसर नाइन कोई नू समझेगा। नहीं तो कहेंगे जी फलाने संत जी को अमीरी मिलती है, फलानी जगह तो 9 निदा 18 सिद्धा मिलती हैं, फलानी जगह तो अमीरी और पैसे मिलते हैं, फलानी जगह तो बहुत अमीर बन जाइए, फलाने बाबा जी को जाओ, वह जादू मंत्र टूणा करेंगे, वो तांत्रिक इंज करेगा तो इंज करेगा। गुरु पातशाह सानू समझा रहे ने, सो सुख मोको संत बतावो, तृष्णा बूझे मन तृप्तावो। मन की तृष्णा बूझ जाए तो मनु सुख चैन मिलेगा। अज दे नौजवान नू नहीं कहना पेगा कि तुसी ये माड़े रस्ते ना जाओ। जे असी उहदी सोर्स नू पकड़ लिया ना कि इहदी वायरस कित्थों आंदा है, असी एंटी वायरस वो कंप्यूटर विच लगांदा ना, असी उहदी मत ते लगा दईए, अपनी मत ते लगा दईए, ताकि इहनू वायरस ना आया करे। इहनू तृष्णा है, इहनू रूपी भुख है, इस करके कुराए पैंदा है, इस करके बाहर मुंडे कुड़ियां दे चक्करां च जांदा है, इस करके शराब और ड्रग लैंदा है, इस करके नाच डांस गाने करदा है, रूपी भुख विच पैंदा है। इस करके रूप देख के सिर्फ कुड़ी नूं घर लैंदा, भावें कुड़ी घर नरक बना दे, माँ प्यो दे नाल बोलदी भी ना होवे, पर की सोहनी कुड़ी लिया के पपेट रखिया, सारी दुनिया नूं दिखा दिया करो, ए देखो जी साडी सोहनी नूं है, ए देख लवो बस। रूपी भुख ते चक्करां विच असीं तृष्णा है ना पिछे, ये खेडां असीं समझदे जाइए, साडा जीवन संवर सकदा है। मते ये ना समझना कि मेरा जीवन संवरिया होया है, ये ना समझना मैं कोई बहुत गुरमुख और बड़ा ज्ञानवान हाँ। मैं भी तुहाडे नाल ही हाँ, मैं भी इसी समाज, इसी सोसाइटी का विक्टिम हाँ। असीं सारे विक्टिम हाँ। असीं रल रल के ऐसियां गल्लां करनियां, ऐसा माहौल क्रिएट करना है कि हमारा सारा सिख जगत ही नहीं, हमारा सारा भारत ठीक हो जाए, हमारा भारत मुड़ के सोने की चिड़िया बन जाए, तो हम सारी दुनिया को फिर हेल्प कर सकेंगे। भारत तो असी दुनिया को समझा सकांगे कि जीवन की होंदा है।
सुख दुख जै परसै नहीं, लोभ मोह अभिमान, को नानक सुन रे मना सो मूरत भगवान। दूजा श्लोक पढ़दे हां, उस्तत निंदिया नाई जै। पहला असी सुख दुख दो अलग अलग अवस्थावां समझ लिया, हुण इस नूं एक पॉजिटिव सेंस नाल देखो। जेकर असी पढ़दे हां जाके हर तन सोई सुहेला, जिन्हों सच का धन मिल जाता है ना, सच की नॉलेज विजडम वाली सतगुर की मत समझ आती ना, वो सुहेला वो हमेशा सदीवी सुख रहिंदा है। माई मेरे मन को सुख, हमेशा वास्ते जिहड़ा सदीवी सुख हो जाता है ना, हुण उस पक्षों दे अर्थ करके देखो, सुख जिहड़ा इंसान सदीवी सुख ही है ना, दुख जै परसै नहीं, उन्होंने दुख पहुंचता ही नहीं है, उन्होंने दुख लगता ही नहीं है। सदीवी सुख की अवस्था वाला हमेशा खेड़े विच रहिंदा है और उन्होंने दुख आत्मक तौर पर पहुंचता ही नहीं है, शरीर नूं ते लगता ही लगता है। शरीर तो सारा बनया ही है, सुख दुख दो इधर कपड़े पैरे जाए मनुख। मते सोचो कि कोई संत जी या ब्रह्म ज्ञानी जी हमेशा सुखी रहते हैं, मते सोचो कि कोई बड़ा पीर पैगंबर अवतार सुखी रहता है। धरती ते कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिन्हों सुख ते दुख सांझे जीवन ते ना आते होण। पर जिहड़ा सुखी मन की अवस्था है, भावें वो तत्ती तवी ते बैठा होए, वो तेरा किया मीठा लागे करेगा, भावें वो कुछ भी होए, वो हमेशा सुखी मन की अवस्था च रहेगा। साडी सुखी मन की अवस्था नहीं रहिंदी जे साडे घर बिजनेस का घाटा पै गया, असीं दुखी हो जाते हैं, क्योंकि आत्मक सुख ने प्राप्त नहीं किया। साडे घर घाटे पै जाण ते दुखी, वाधे पै जाण ते सुखी। जेकर कैलेमिटी हो जाए तो जिहड़ा अंदरों सुखी है ना, ओदे मन उत्ते चीज़ असर नहीं करेगी, और रब जी नूं कदे शिकवे शिकायत नहीं करेगा। टुडे इट्स वेरी, गॉड इज क्रेजी, व्हाट्स द वेदर, लुक इट्स वेरी सल्टरी, वेरी हॉट, आई हेट दिस वेदर। जदों मनुख है करता ना, रब जी नूं गिले शिकवे शिकायत करता, क्योंकि अंदर सुख नहीं है। अंदर सुख ना होए तो एयर कंडीशन बैठ के भी लोगों नूं गालां कढ़दा होएगा फोन ते, तुसीं देख लेना। जिहड़ा एयर कंडीशन बेंज कार विच बैठ के जा रहा और ड्राइवर चला रहा है, तुहानूं लग रहा होगा बड़ा सुखी है, पर राती उन्हें सिर्फ सूप पीता सी, सवेरे उन्होंने कुछ खाना अलाउड ही नहीं, क्योंकि उन्होंने डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो अपनी कार ते बैठ के कचहरी का केस लड़न जा रहा है। ही इज़ नॉट सुखी। डोंट लुक बारों बारों, बारों देखेगा तो भुलेखा खा जाएगा। अंदरों देखा कर, तू बारों देखते भुलेखे खाना, अंदरों देखने वाली खेड समझ लेगा ना, तो पता लगेगा जिन पट अंदर बार गुद्दड़ ते भले संसार, तो तेनों जीवन जात समझ आ जाएगी कि सुख दुख की होंदे ने। पर जो सदीवी सुख वाली अवस्था विच आ जाता है, उन्होंने दुख जै परसै नहीं, उन्होंने दुख टच नहीं कर सकता कि आत्मक तौर पर उसनों कुछ दुख नहीं कह सकता। सैकेंड, उस्तत निंदिया नाए जै कंचन लो समान। ਇਹਦੇ अर्थ ने को नानक सुन रे मना मुकत ताई तय जान। वो इंसान जींदे जी ही मुकत है जिसको उस्तत और निंदा से जो ऊपर हो जाता है। पर मैं होर इनू गहराई विच देख रहा सा, उस्तत दे तत्ते नू सिहारी लगी हुई है। तब मनु इंज लगा कि जो इंसान लीन ताए मेहमान है, मुकत है, गुण गोबिंद गांदा है, रब जी दे नाल इकमिक दी अवस्था माण रहा है, वो उस्तत तत्ते नू सिहारी है और रब जी दी उस्तत विच रहिंदा है। इस करके उन्होंने निंदा कुछ नहीं कहती है। उस्तत निंदिया नाए जै। जिस जो इंसान उस्तत में लीन है, रब जी की वड्याइयां दियां विचारां विच लीन है, गुणा विच, उन्होंने निंदा कुछ नहीं कहती है। सानू तो कोई जरा जी साडी वड्याई करे तो गड़बड़ हो जाती है, असी उच्चे आसमान ते चढ़ जाते हैं। जरा जी कोई निंदा कर दे, असी जरा जी भी अपनी निखेधी, अपने अवगुण नूं सुनन नूं तैयार ही नहीं आ। निंदा टच ही नहीं कर सकती जिहड़ा रब्बी गुणा दे नाल है। किवें? असी समझिया सी ये मेरा मन अते मेरी कॉन्शियंस, मेरी कॉन्शियंस रब जी है ते विच मेरा मन आ गया और मन मेरा मैला है। मेरा माला मन मेरी कॉन्शियंस नूं देखण नहीं दे रहा। जिवें शीशे दे उत्ते वाइपर ठीक ना होण, बारिश होवे, शीशा फॉग विंडशील्ड उत्ते, तो सानू शीशा क्लीयर नज़र नहीं आता। साडा ये जिहड़ा वाइपर है ना, ये वाइपर गुरु का ज्ञान है, विजडम, गुरु की मत है, शीशा साफ कर दिया। पर जिहड़ा शीशा मैला है, इसनूं साफ नहीं किया गया, बाहर नज़र नहीं आता। पिछे कौन बैठा है? कॉन्शियंस, रब जी। हुण मैं सोच रहा सी कि इस शब्द के अर्थ की बन गए। जदों मैं अपने मन नूं ट्रांसफर कर दिता,
ट्रांसफॉर्म कर दिता, मेरा मन ट्रांसेंडेंट अवस्था च पहुंच गया, एलिवेट हो गया। जेड़ा मेरा मन हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरी होए हो गया। पहला मन मेरा मैला सी, फिर मेरे मन नू मैं साफ किया वाइपर्स दे नाल। हुण जदों साफ हो गया तो मेरा मन फुरनिया की अवस्था तो उपर हो गया है मन हुणे भी, पर हुण मेरा मन किहड़ा हो गया? हुण मेरा मन हो गया ये मन प्यारिया तू सदा रहो हर नाले। हुणे मेरा मन हो गया मन प्यारा जियो मित्रा हर लद्दे खेप सवली, हमेशा सुखी रहीदा। हुण ट्रांसेंडेंट अवस्था वाला जिहड़ा मन हो गया ना, तो ये वाला मन ना कॉन्शियस के नाल इकमिक हो गया। मैं लेमैन की लैंग्वेज ही सारा सीन बना रहा। ये मन कॉन्शियस नाल इकमिक हो गया। मेरा जिहड़ा भैड़ा मैला मन सी वो रहा ही नहीं। जदों मेरा मन रहा ही नहीं तो साफ नज़र आया ना। एक आर्टिकल असी लिखिया सी, उहदे ते सैमीनार फरीदाबाद कीता सी, जैसी बिरती वैसे रब जी। लोग पूछते हैं अगर कोई भैड़ा करता है तो वो भी रब जी है, तो मतलब रब जी ने भैड़ा किया है। अगर कोई चंगा वो अंदर भी रब जी ने, तो रब जी ने चंगा किया है। ऐसी गल नहीं है। सो सिंपल, जदों असी धुप का लिशकारा आंदा है और कागज़ उत्ते शीशा रखते हैं, जो शीशा नीला है तो लिशकारा नीला पेगा, शीशा लाल है तो लिशकारा लाल पेगा। जैसी बिरती, ए मेरी बिरती मेरा मन सी, ए दुनिया नूं नज़र आ रही है। रब जी सूरज की लाइट, मेरे अंदर रब जी ने, पर मेरे अते बाहर दे विचकार सिर्फ मेरा मैला मन का शीशा सी, जिहदे चों जैसियां जैसा जैसी बिरती वैसे रब जी बाहर आ जाएंगे। बिरती अंदर भैड़ी है तो बाहर भैड़े वाले काम करेगा, बिरती अंदर चंगी है तो चंगे वाले काम करेगा, पर अंदर पिछे कॉन्शियस सेम है। हुण जिहड़ा भैड़े वाला मन विचों कढ़ दिता, वाइपर दे नाल उंज कीता, साफ हो गया, इकमिकता हो गई। इकमिकता होने नाल पता की होया? हुण मेरा मुझ में कुछ नहीं। मैं आज इस श्लोक नूं विचार रहा सी, मेरा उस वेले भुब्बा निकलियां। गुरु पातशाह कर रहे मेरा तो मन सी मैला, हुण रहा ही नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कि जैसा तेरा तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, हुंदे तेरा ही है, तू कर रहे हैं, तू ही बोल रहे हैं। फिर अवस्था आ जाती है आपे रसिया आप रस आपे रावण हार, मुकत आए तै जान, उन्होंने ही कहते हैं उस्तत निंदिया नाए जै। जिहड़ा इंसान उस्तत अते निंदा विच नहीं पैंदा। कंचन लो समान, इसनूं समझण वास्ते थोड़ी जी और बारीकी की लोड़ है। असी जितना गहराई च जाइए सानू कुछ प्राप्त होता है। दुनिया यह कहती है जो इंसान सोने को और लोहे को एक समान समझता है। हुण जिहड़ा बंदा सोने और लोहे नूं एक समान समझदा है तो उन्हें घर विच जिथे जिथे लोहे का काम कराना कि उत्थे सोना फिट कर देवे, तो जिथे जिथे सोना लाना सी उत्थे की लोहा फिट कर दे, क्योंकि एक समान है। गल जरूर विच कोई है। मेरा जीवन उच्चा करने वास्ते है, मेरा अंतरात्मा बलवान करने वास्ते है, गल विचकार जरूर कोई है। पर पहली स्टेज जिहड़ा आम दुनियावी मीनिंग ने उन्हां तो उपर दी एक अवस्था समझिए। सानू आस्तिक नास्तिक नज़र आते हैं, सानू सुख दुख नज़र आते हैं, सानू बुरा भला नज़र आता है, सानू पागल ते सियाणा समझ आता है। असी सारे दो दो पाए हुए हैं। गुरु पातशाह कहते हैं बुरा भला तिचर आखदा जिचर है दूहू माए। जब भी तू दो दो बना लेता ना तभी तक बुरा भला कहता है। बुरा भला बना लांगे तो असी वैजीटेरियन नूं चंगा बना लांगे, नॉन वैजीटेरियन नूं बुरा बना लवांगे, वो चंगा वो मंदा। ए आस्तिक है नास्तिक, ए सवेरे उठता चंगा है, सवेरे नहीं उठता मंदा, ए इंज करता है चंगा इंज मंदा। गुरु पातशाह सानू समझा रहे हैं दो दो चक्करां विच ना पिया कर। तो मैं एक स्टोरी सुनी सी कि दोनों पति पत्नी धार्मिक तौर पर अपने आप को बहुत धर्मी समझते सन और दोनों अपनी बड़ी उच्ची अवस्था समझते सी। वो कहता सी मैं तेरे तो अगे हाँ, वो कहती सी मैं तेरे तो अगे हाँ, पर यह बहस मुकदी नहीं सी। दोनों जा रहे हैं, रिक्शे च बैठे हुए हैं। रस्ते विच पति रिक्शे वाले नूं कहंदा भैया रोको। पत्नी कहती है क्या बात है? कहता है रास्ते में कंचन पड़ा है, सोना, किसी की ज्वेलरी पड़ी हुई है, सोना पड़ा है, और मैंने सुना है धार्मिक स्थानों पे कि सोने को मिट्टी समझो, कंचन माटी मान है, मिट्टी समझो। तो रिक्शा रुकया, पति उतर के मिट्टी खोदन लग पिया। पत्नी पूछती है क्या कर रहे हो? कहता मिट्टी को मिट्टी में डाल रहा हूँ। ये कंचन को मिट्टी समझना चाहिए ना, तो इसको मिट्टी में डाल रहा हूँ। तो कहती है तुम्हारी आँखों को अभी कुछ समझ नहीं आई?
अगर ये मिट्टी है तो मिट्टी को मिट्टी में क्या डालना। ਜਦੋਂ तक ਸਾਡੀ दृष्टि ਰਹਿੰਦੀ है ना ਤਾਂ तक ਅਸੀਂ ਚਿੱਚਰ ਹੈ ਦੂਹ ਮਾਏ ਵਾਲੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਜੈਨੀ ਬੋਧੀ ਇਸਤਰੀ ਮਰਦ ਗੇ ਲੈਸਬੀਅਨ ਖੁਸਰਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਨੇ ਨਾ ਚੰਗੇ ਭੈੜੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੇ ਲੋਇਣਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਰਾਮ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੰਚਨ ਸੋ ਵਿੰਨਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਸੀ ਨਾ, ਸੋ ਵਿੰਨਾ ਮੀਨਸ ਸੁੰਦਰ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਸੋਨਾ ਬਣ ਗਈ, ਕੰਚਨ ਬਣ ਗਈ। ਕੰਚਨ ਸਾਡੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਤਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਪੰਜ ਤੱਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨੋ ਚਤਰ ਸੁਜਾਨ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕੰਚਨ ਨਾ लो समान हो जाता है, फौलादी हो जाता है, इतना फौलादी हो जाता है कि उसको कोई किसी की निंदा टच नहीं कर सकती है। जदों फौलादी हो जाता है तो वह जीवन की बन जाता है। गुरु पातशाह कहते हैं, कौन नानक सुन रे मना मुकत ताए तै जान। उसको तू समझ के वो मुकत हो गया इंसान। लोहे वर्गा फौलादी स्ट्रोंग एज स्टील वर्गा ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੌਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ, ਸੱਸਾਂ ਨੂੰ, ਨਨਾਣਾਂ ਨੂੰ, ਦਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਠਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਵਾਈ ਨੂੰ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਈ, ਮੇਰੇ ਵੇਲੇ ਮੂੰਗੀ ਦਾਲ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚਿਕਨ ਖਵਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟਿੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਖਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕੱਚੀ ਬੁੱਧੀ, ਸ਼ੈਲੋ ਕੱਚਾ ਸਰੀਰ। ਇਸ ਕੱਚੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੋਲਿਡ ਲੋ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੰਚਨ ਲੋ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਹਰ ਸੋਗ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਗ ਦੁਖੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਿਰਫ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਸੋਗ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਖੇੜੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਖਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਸ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੀਨਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਗ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੋਗ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਫਾਇਰਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋਗ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇੰਝ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਨੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦਾ ਵੈਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਈ ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀ ਨਾ, हम सबना के साजन दूर परायो मेरे तन का बिरहा तो मेल कियो मेरे राजन। ये रब जी दे मिलन की अवस्था है कि मैनू कोई वैरी लगता ही नहीं। एक लिखारी लिखता है, ये तो हो सकता है कि तुहाडे बारे निंदा करन वाले, तुहाडे बारे मन अंदर वैर रखन वाले बथेरे होन, पर उच्ची आत्मक अवस्था की ये निशानी है। इंसानियत भरपूर ह्यूमैनिटी वाले आइडियल इंसान, गुरमुख इंसान की निशानी है कि ਉਹਦਾ ਵੈਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝਦਾ, मतलब वैरी है भाई, तुम हो तो मेरे दुश्मन पर अच्छा मैं तुमको मित्र समझ लेता हूँ, दैट्स यूजलेस।
ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਝ ਹੀ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਕਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮ ਕ੍रोध लोभ हंकार ਨੂੰ दुनिया वैरी समझ रही है, वो इनको निकाल दो, भगा दो, शरीर से फेंक दो। भगवान जी मेरे काम क्रोध लोभ हंकार ये भैड़े हैं, बिल्कुल इनको हटा दो। इनको वैरी समझते हो, वो इसको मित्र समझिए। काम क्रोध लोभ हंकार तेरा साथ दे सकते हैं, तेरा जीवन ऊंचा कर सकते हैं, तेरे को इम्पोर्टेंसी से ऊपर उठा सकते हैं, तेरे को कायरता से ऊपर उठा सकते हैं, तेरे अंदर मर्दानगी भर सकते हैं। एक काम क्रोध लोभ हंकार नूं वैरी ना समझे, मित्र ने। अंदर दे देखने ने तै वैरी नहीं ने, बाहरले देखने तब मेरे वास्ते कोई भी वैरी नहीं। यही तो सिखाया है। कहो नानक सुन रे मना, मुकत ताएं तै जान। मरण तो बाद वाली मुकत की अवस्था की गल नहीं चल रही, जींदे जी मुकत अवस्था प्राप्त करनी है। जे जींदे जी मुकत नहीं तो लोक गयो परलोक गवाया, दोनों बेकार ने। हुण कहंदे ने भै काहू को देतना ना पैमानत आन। आन का मतलब होंदा है दूजियां दा, होरना दा। ਜਿਹੜਾ इंसान ना तो किसी को डर देंदा है ते ना किसी का डर लैंदा है। न पैमानत आन, औरों का डर नहीं लेता। पर सानू गुरुद्वारे विच गुरु पातशाह जी की मत जिथे बयान हो रही होवे, गुरु पातशाह जी की मत का पहरा होवे, उत्थे बैठ के भी डरा जाते हैं। इंज करोगे अगे जाके इंज तुहानू जम पकड़ लैणगे, ऐ करोगे तुहानू अगे नरकत सजा मिलेगी। डरे को डराते हैं लोग, और जो आप डरे हुए हैं वो औरों को डराते हैं। गुरु पातशाह कह रहे हैं भै काहू को देतना, किसी को डराता नहीं है। डर दे दे के धर्म सिखाना बेकार धर्म है, दो कौडी का धर्म है। सच समझ के जिहड़ा इंसान जींदा है उन्होंने डर नहीं रहिंदा, वो तो रब्बी नियमां दे निर्मल भाव च रहिंदा है। पर उन्होंने ये डर के हाय धर्मराज पकड़ लेगा, हाय जम पकड़ लेगा, फिर मन अंदर पैड़ होने है। भै काहू को देतना ना पैमानत आन, कौ नानक सुनने मना, ज्ञानी ताई बखान। मुकत ताई ते जान, मुकत ताई ते जान, ज्ञानी ताई बखान, सो मूरत भगवान। ये सारिया सिम्पटम्स सानू समझाए ने कि ए इंसान जे तू अंजीर लग पवे तो तू मूरत भगवान ही है। घट घट में अर्जू बसै तेरे अंदर ही रब जी ने, तू मूरत भगवान ही है। पर एक लिखारी लिखदा बंदे को खुदा मत कहो, बंदे को खुदा मत कहो, बंदा खुदा नहीं है। बड़ा इस तरह अपने लोर कहता बंदे को खुदा मत कहो, बंदा खुदा नहीं है। पर बंदा खुदा से जुदा भी नहीं है। हर बंदे अंदर खुदा जी ने, रब जी ने खलक वसै रब माए, इस दे अंदर रब जी रहिंदे ने, तो तू रब जी तेरे अंदर रहिंदे ने, तू मुकत अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस करके रब्बी गुण गाया कर, इस करके तू बिल्कुल हमेशा गुरुमत गुरु की मत अनुसार रहा कर। जिमें मच्छी पानी बिना नहीं रह सकती, इस तरह तू पानी बिना ना रहा कर। गुरु की मत अनुसार जिएगा, तेरा दीन डोलेगा नहीं, तेरी पत बरकरार रहेगी। यह सारे असी पिछले 7-8 दिनों डिस्कस किया है। बोलदियाँ विचार करदियाँ अनेक गलतियाँ हो गई होणगियां, मैं खिमा दा जाचक हाँ।